Good evening, sir. Good evening. Where is Kakasa, sir? She's in her village now. Good evening, sir. The Good hostel evening, is sir. closed. देखो ना, Yes, मैंने अभी बुक पोस्ट कर दिया. बुक कहाँ डिलीवर होगा बच्चा? क्या कशा? Yes, sir. अब बुक कहाँ डिलीवर होगा? मेरी फ्रेंड ले लेगी, हम बोल देंगे. Okay, good. All right. So, what do we? Where do we start? Dear students, I read that I+1 theory one more time, and I will post. I will make a video about it in Hindi so that you guys can become more sure about what you need to do to improve your English. Okay, we have talked about it in the class once. We have talked about I+1 theory, how language input or comprehensible input is key to learning. And the affective filters. Hello, Rishikesh. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Samir. Good evening, Samir. Good So evening. what are we going to do today? Was there homework in the practice book? No. no, sir. Okay, then I think we were doing this page in our last class. Right, 4.16. Yes, sir. Okay. How do you say अभी $1 में 84 रुपया मिल रहा है? You Yes, sir. get How much we get in Sir, dollar? there are 84 rupees to the dollar. okay. Currently there are 84 rupees to the dollar. Yes, right. Yes, that's right. Good evening, sir. Good Good evening. Good evening. So, what do we do? Kashif, you're back. Your 3-4 days are over. No, sir. Today my day off. Today is your day off. What are Yes. you busy with? You never missed classes like this, 3-4 days regularly, back to back. Because my client and my company is challenging with work. Suleikha is here. Suleikha, welcome. Okay. I have a message for you all. I notice that when I talk to you in English, okay, hello, I can hear noises. Where are these noises coming from? Samir? Samir, there are children around you. Mute yourself, Samir. Don't stop them. You mute yourself. Don't stop them. Okay. They will not stop. They will not stop. You need to just mute yourself. Aarti, how are you, Aarti? I am fine, sir. Where are you? Still in Patna? Yes, sir. When do you think you will go back to your village, for the Shera? Or will you go at No, all? sir. You will not go.
You are gonna stay in Patna during Dashera. Yes, sir. I see. Okay. Good evening, sir. Hello. Is it Maz or Uzma? Uzma. Sometimes your voice sounds very much like Maz. He's also a young boy, you know. His voice is very feminine. His voice is like a girl's right now, you know. So sometimes it's easy to mix up Uzma and Maz. Atif, be on camera. Everybody, be on camera, please. Yes. Aisha, Uzma, you too. Thank you. I have something to say to you guys. I read that article one more time, you know, this I+1 theory of language acquisition. I would like to share the PDF with you. The problem is it's in English. I want to tell you what it means in Hindi one more time. It's very necessary for me that I share this with you. Okay, very necessary. I would like to have this conversation with you in Hindi for next 10-15 minutes because it is really important that you understand everything I say. Okay, so I'm going to talk in Hindi for 10 minutes. Please, everybody, pay full attention. Okay, आप सारे लोग स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, और इसके लिए 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स कहलाते हैं वो सब, और वो सब एक दूसरे के साथ compete करते हैं. आप लोग भी उनको कंपेयर करते हो. ठीक, इन सब झमेलों में स्टूडेंट्स का क्या नुकसान होता है वो शायद कभी नहीं समझते. जब मैं 15 फोटोज दिखाऊं और कहूं इसमें से कौन है अमिताभ बच्चन, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो, इंटरेस्टिंग पार्ट से हम लाए प्लीज गाइस कीप योर कैमरा ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. महफूज, you are in the जी wrong सर direction. You're in the wrong direction. You know, your camera, your light, the light is behind you. The light should be in front of you. Turn around. एक Yeah. एक मिनट ब्लूटूथ Okay. Thank you, Uzma Bita. Okay. मैं आप लोगों से ये बातचीत हिंदी में करना चाहता हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ आप मेरी बात पूरी तरह से समझें. और मैं चाहूंगा कि कभी भी आप ये ना करें, किसी से पूछें कि स्पोकन इंग्लिश, कोई आपको कुछ भी ना बताए स्पोकन इंग्लिश के बारे में, आप पूरे प्रोसेस को इतने अच्छे से समझ सकें कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है. दिल्ली में एक एड्रेस है जहां आपको जाना है. ठीक, अगर आपको 100% पता है कौन सा रास्ता किधर 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 लेके जाएगा, ठीक, चाहे आप पैदल हो चाहे बाइक से हो, समय कम लगे ज्यादा लगे, आप आराम से चलते चलोगे उस रास्ते पे, क्योंकि आपको पता है ये रास्ता वहां लेके जाएगा. लेकिन जब आप श्योर नहीं होते हो तो आप बीच रास्ते में कभी इससे पूछते हो कभी उससे पूछते हो और रास्ता बदल लेते हो कहने पे लोगों के कि नहीं ये तो नहीं जाता, तो आप बदल लेते हो. तो जो चीज आप हासिल करने निकले हो, वो चीज का रास्ता क्या है, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं, ताकि आपको कभी भी कोई भी आपके सीधे रास्ते से अलग ना कर सके. चलिए, द इनपुट हाइपोथेसिस एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी. हर एक इंसान एक भाषा, अपनी मदर टंग, अपनी माँ से, अपने घर से, परिवार से सीख जाता है बोलना. उसके बाद कई लोगों को एक और भाषा सीखने की जरूरत पड़ती है जिसको सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं. तो ये जो सेकेंड लैंग्वेज सीखने का काम है,
कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है इस वजह से, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में, 5-6 साल की उम्र में ही ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो उस नई भाषा जो सीखना चाहते हैं वो बोलने में कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन एक अच्छी खासी आबादी है आप जैसे लोगों की, जो एक सर्टेन एज में आने के बाद भी उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जिसको आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली। और आप हमेशा अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके कई बार जवाब ऐसे भी आते हैं आप लोगों के पास कि शायद मैं इंटेलिजेंट कम हूं, शायद एक लाइन है, लोग बोलते हैं मेरी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन उसके वाई में नहीं जाते। वो ये नहीं पूछते कि क्यों है ऐसा। तो हम आज बात करेंगे कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। सेकंड लैंग्वेज मतलब आपके पास एक मदर टंग है और आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज, तो उसका प्रोसेस क्या होता है उसको बहुत ही गहरे से, बहुत ही माइन्यूटली अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस बात को देखिए, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्विजिशन और एक होता है लर्निंग। क्योंकि ये इंग्लिश टर्म्स है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप सब लोगों के लिए। और प्लीज अगर थोड़ी बोरिंग हो जाए बातचीत तो पर भी प्लीज सुनते रहना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कुछ जगहों पे बातचीत बोरिंग हो जाए कुछ जगहों पे, ओके? लेकिन प्लीज सुनते रहना, आपके लिए बहुत जरूरी है उस जगह का रास्ता, रूट जानना जहां आप पहुंचना चाहते हैं। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं, कोई ना कोई आपको कुछ और बोल के दूसरे रास्ते पे डाल देगा। चलिए देखते हैं। एक्विजिशन मतलब अक्वायर करने का प्रोसेस, ओके? अक्वायर करना मतलब हासिल करना। एक्विजिशन अक्वायर से बना हुआ नाउन है, ठीक है? जैसे ट्रांसलेट एक वर्ब है, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन एक नाउन है, ठीक है? तो वैसे ही एक्विजिशन एक नाउन है अक्वायर से, यानी अक्वायर करना। तो दोनों में क्या फर्क होता है? तो क्लियरली लिखा है कि दोनों इंडिपेंडेंट तरीके हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में हम सबकॉन्शियस एक्विजिशन करते हैं, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, उसको कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, ओके? एक्विजिशन इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस, ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस मतलब जिसका एहसास नहीं हो, ठीक है? जैसे एहसास नहीं हो मतलब आप सोच समझ के नहीं करते, वो बस होता है आपके दिमाग में, आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते। जैसे अगर आप हाथ ऐसे उठाना चाहते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि चलो हाथ उठाना है, ठीक है? तो एक है कॉन्शियस प्रोसेस, जब आपको कोई चीज बताई जाए कि देखो ये चीज बता रहे हैं और आप कहे अच्छा हम ये चीज सीख रहे हैं, इसको कहते हैं कॉन्शियस लर्निंग। तो एक होता है लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, एक्विजिशन इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है दोस्तों? और जो लर्निंग होती है ना, दैट रिजल्ट्स इन नोइंग अबाउट लैंग्वेज। जो लर्निंग होती है ये रिजल्ट होता है किस चीज में, यानी इसका नतीजा क्या होता है? हम लोग किसी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। जब लर्निंग करते हैं तो उस लैंग्वेज को नहीं जानते, उस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, नोइंग अबाउट लैंग्वेज। और जो एक्विजिशन होता है ये क्या करता है हमें, ये लीड्स टू प्रोसेस चिल्ड्रन यूटिलाइज इन एक्वायरिंग द फर्स्ट लैंग्वेज, ओके? ये वैसा समझ लीजिए एक्विजिशन, जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज के लिए क्या करते हैं, अगर आप जब छोटे होते या कोई बच्चा आपके यहाँ पैदा होता है तो वो भी तो बोलना सीखता है ना? क्या उसको कोई चीज कॉन्शियसली बताई जाती है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये स्ट्रक्चर है, ये टेंस है, कुछ भी इस तरह की बातें बताई जाती हैं उनको? नहीं। तो वो जो करते हैं वो एक्विजिशन है। बच्चे अपने आसपास जो आवाज सुन रहे होते हैं उसके साथ चीजों का जो रिश्ता बनाते हैं दिमाग में, इस प्रोसेस को एक्विजिशन कहते हैं। और ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। जैसे आप लोगों ने गालियां देना सीखी हैं, लेकिन कभी कोई टीचर नहीं नाम लेंगे कि फलाने इंसान ने मुझे ये गाली सिखाया, या फलाने जगह पे मैंने ये गाली सीखी, फलाने दिन मैंने ये गाली सीखा। ये आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये एक कॉन्शियस प्रोसेस नहीं था। गाली जो आपने सीखा है ये कॉन्शियस कॉन्शियस प्रोसेस नहीं था, यानी कि आप जानबूझ के उसको नहीं सीखे कि चलो ये सीख रहे हैं। ये सबकॉन्शियस लेवल पे हुआ, आपके आसपास ये आवाज निकली किसी के मुंह से और आपने उसका रिश्ता बनाया चीजों से, मूड से, इमोशन से,
और आप इसको एहसास करने लगे और एक समय आया आप भी बोलने लगे। तो अभी आप इतनी बातें तो समझ गए कि लर्निंग क्या होती है, कॉन्शियस होती है, और एक्विजिशन क्या होती है, सब कॉन्शियस होती है। क्या आप ये दोनों लाइन को महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों? यस सर। सारे लोग इस बात को समझते हैं कि लर्निंग जो होती है कॉन्शियस होती है और एक्विजिशन जो होती है वो सबकॉन्शियस होती है। यानी जो बात आप याद कर सकते हैं कि मैंने ये बात फलाने दिन सीखी थी, वो क्या था, एक्विजिशन था या लर्निंग थी? जवाब दीजिए। लर्निंग सर। लर्निंग। 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 अगर 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 आप बता सकते हैं कि फलाने दिन मैंने ये चीज सीखी, फलाने टीचर ने मुझे ये बात बताई, तो वो क्या था, लर्निंग था। लर्निंग। और लर्निंग किस चीज का, लर्निंग का रिजल्ट क्या होता है, नोइंग अबाउट लैंग्वेज। वो अटरेंस को इनिशिएट नहीं करवाता, यानी कलम पकड़ के इंग्लिश लिखने लगना या मुंह से इंग्लिश बोलने लगना, ये लर्निंग का रिजल्ट नहीं होता है। लर्निंग का रिजल्ट होता है नोइंग अबाउट लैंग्वेज। जैसे आप फ्रेंच स्पेनिश के बारे में कोई बात जानते हैं? सर। इटा, अच्छा मैं आपको, आप इटालियन के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। तो आपको मैं ऐसे 10 साल के 12 साल के बच्चों को मिलवाऊंगा, जिनको अगर आप कलम पकड़ा दो और कहो कि कल क्या हुआ आपके साथ, ठीक है, जरा बताइए। आप एक रेस्टोरेंट गए थे, वहां क्या हुआ बताइए, कलम से लिखिए, मुंह से मत बोलिए। तो कलम पकड़ के बैठे रहेंगे 5 मिनट 10 मिनट तक, नहीं लिख पाएंगे एक लाइन। ठीक है दोस्तों, समझ में आई? अब उन्हीं बच्चों से आप ये पूछिए कि ही गोज सही है कि ही गोज, तो बोलेंगे ही गोज सही है। वही बच्चे आपको बता देंगे ही गोज सही है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? उन्हीं बच्चों से आप पूछिए पेन का प्लूरल क्या होता है, तो बोलेंगे पेन्स। ठीक है, वो बता देंगे आपको। तो तो इससे ये पता चलता है कि उनके पास नॉलेज है अबाउट इंग्लिश, लेकिन क्या नहीं है उनके पास, स्किल नहीं है लैंग्वेज को यूज करने का। यानी कि इनिशिएट करने का उनके पास स्किल नहीं है कि उस भाषा को रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में प्रोड्यूस कर सके। वो भाषा को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जबकि उनके पास नॉलेज है। इसका मतलब क्या, उन्होंने अब तक क्या कर रखा है, उन बच्चों ने लर्निंग किया है या एक्विजिशन किया है? लर्निंग। एक्विजिशन। लर्निंग, लर्निंग किया है। एक्विजिशन करते, लर्निंग। एक्विजिशन करते तो अटरेंस होता। एक्विजिशन लीड्स टू अटरेंस। जो एक्विजिशन होता है वो प्रोडक्शन तक ले जाएगा आपको, यानी आप उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे अब बोलते समय और लिखते समय। लेकिन जो लर्निंग होती है वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में रोल नहीं प्ले करता, वो आपका नोइंग अबाउट लैंग्वेज तक रिजल्ट ले जाता है। आप बात कर सकते हैं कि इसमें ऐसे होता है उसमें वैसे होता है, और ये बातचीत आप किस भाषा में करेंगे, अपनी मदर टंग में करेंगे, ना कि उस भाषा में जिसको आप सीख रहे हैं। क्या आपने ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जहां लड़के बैठकर डिस्कशन करते हैं कि इंग्लिश में क्या सही और क्या गलत है, लेकिन उनकी बातचीत हिंदी में हो रही होती है? ऐसे ग्रुप्स देखे हैं आपने कभी? आप यस ऐसे सर। ग्रुप्स का हिस्सा रहे होंगे जहां 2-3 लोग ये बातें कर रहे होंगे कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये बातचीत हिंदी में हो रही होती है। और वो बातचीत किस बारे में हो रही होती है, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश। तो आप मुझे बताएं, वो लोग जो ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने अब तक इंग्लिश क्या किया है, एक्वायर किया या लर्न किया है? लर्न किया है। लर्न। उन्होंने सबकॉन्शियसली एक्वायर किया या कॉन्शियसली लर्न किया है? सबकॉन्शियस एक्वायर किया है। सबकॉन्शियस एक्वायर करेंगे तो आपको अटरेंस तक ले जाएगा संयोगिता मैम। जब सबकॉन्शियस एक्विजिशन होती है वो आपको अटरेंस तक ले जाता है, उसका रिजल्ट होता है अटरेंस। आप देखते हो बच्चे बोलने लगते हैं दुद्धू, मम्मी, पापा, पप्पा जा, मम्मी आ, ऐसे बोलने लग जाते हैं ना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस एक्विजिशन से सीखे हैं। तो जब आप सबकॉन्शियस एक्विजिशन करेंगे तो अटरेंस नेचुरल रिजल्ट है उसका। लेकिन जब आप कॉन्शियस लर्निंग करोगे तो आप लैंग्वेज के बारे में बात करोगे। यहां सामने लिखा है लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन नोइंग अबाउट लैंग्वेज। नोइंग अबाउट लैंग्वेज अटरेंस तक नहीं ले जाती ये कॉन्शियस जो प्रोसेस है लर्निंग की। तो संयोगिता मैम, वो सारे लोग, आप लोग अपने बारे में सोच के बताएं कि ज्यादातर क्लासेस जो आपने अटेंड किए थे वहां टीचर आपको क्या करवा रहे थे, सबकॉन्शियस एक्विजिशन या कॉन्शियस लर्निंग?
Conscious learning. ओके, Conscious learning. तो हम लोग अब इस दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो हाइपोथेसिस है इसको कहते हैं द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोग इस बात को मानिए कि हम लोग जो रूल्स ऑफ लैंग्वेज सीखते हैं, जो हासिल करते हैं, वो एक खास प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में हासिल करते हैं। मतलब अगर आपको कोई इंग्लिश सिखाना चाहे, ठीक है, तो इंग्लिश के कुछ रूल्स आपके दिमाग को पहले एहसास होगा, आपका दिमाग उसको पहले महसूस करेगा। इंग्लिश की कुछ बातें आपका दिमाग पहले सीखेगा और कुछ बातें उसके बाद सीखेगा। कभी उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि दूसरी चीज सीख दूसरे लेवल पे सीखे जाने वाली चीजों को हम पहले लेवल पे सीख लें, ऐसा नहीं होता है। यानी कि एक नेचुरल ऑर्डर है सीखने में, क्या चीज हम पहले सीखेंगे। अब आप बोलेंगे इसमें कैसे, क्या मतलब है आपके कहने का, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एक नेचुरल ऑर्डर होता है, प्रेडिक्टेबल ऑर्डर होता है, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये पहले चीज समझ में आएगी आपको, फिर ये चीज समझ में आएगी आपको, फिर ये चीज समझ में आएगी आपको। अगर आप उसको आगे पीछे करना चाहेंगे इस ऑर्डर को, तो आप उलझ के रह जाएंगे, परेशान होंगे। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो चीज आप महसूस करते हैं वो है कॉन्क्रीट नाउन्स। मान लो आज आप तमिलनाडु चले जाओ सारे के सारे, और 2-3 महीने तमिलनाडु में रहो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तमिलनाडु जब जाओगे तो कुछ ऐसे वर्ड सीखोगे तमिल के, सबसे पहले आपके अक्वायर होंगे ऐसे कुछ तमिल वर्ड्स जो कॉन्क्रीट नाउन्स होंगे। हो सकता है उसका मतलब रोड हो सकता है उसका मतलब घर हो सकता है उसका मतलब औरत हो सकता है उसका मतलब माँ हो। ये ऐसे शब्द हैं जो एक्चुअली कॉन्क्रीट हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं इनके, ठीक है। कोई कीमत पैसा नहीं हो सकता कि आप तमिलनाडु जाएं और सबसे पहले आप वहां जाके संतोषजनक वर्ड के लिए जो तमिल वर्ड है वो सीख जाएं। आप समझ रहे, संतोषजनक एक हिंदी वर्ड है, Yes. सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट आप पहले नहीं सीखेंगे, कोई कीमत पे आप पहले नहीं सीख पाएंगे। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे, 6 महीने वहां रहते हैं, साल भर वहां रहते हैं, तो जो पहले आएगा आपके दिमाग में, जो पहले तमिल वर्ड्स आपके दिमाग को एहसास होंगी, वो है कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपना कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस रखती हैं, यानी फिजिकल नाउन। जैसे हिंदी में बोले दीवार, हिंदी में बोले चेयर, कुर्सी कुर्सी, हिंदी में बोले शिक्षक। तो ये शब्द जो हैं, आप बताएं, एक बच्चा सबसे पहले कौन सा वर्ड सीखता है? दुद्धू, मम्मी, पानी, मम्मा। तो ये सब वर्ड्स क्या है, कॉन्क्रीट नाउन्स हैं कि नहीं है? Yes. तो Yes, sir. आप सबसे पहले जो सीखोगे वो क्या सीखोगे? कॉन्क्रीट नाउन्स। Concrete noun. Concrete noun. तो एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर है लैंग्वेज लर्निंग का। हम लोग लैंग्वेज अक्वायर करते हैं जब लैंग्वेज, तो उसमें अक्वायर करने के लिए, फिर से लर्निंग मुझे नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि मैंने लर्निंग और एक्विजिशन को सेपरेट करा है। बताया है कि एक है कॉन्शियस प्रोसेस और एक है सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो जब आप एक्वायर करना चाहते हैं लैंग्वेज, तो आप एक नेचुरल ऑर्डर में चीजों को सीखते हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। कोई उसके खिलाफ जाके दूसरी चीज पहले नहीं सीख लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को? एक और बात बताता हूं, जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, यानी सेंटेंस बोलने लगोगे तमिल में, तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे पता है? कि कौन से शब्द कहाँ रहने चाहिए। शब्दों का ऑर्डर आप पहले गौर करोगे। क्या गौर करोगे? शब्दों के ऑर्डर। यानी कि अगर 5 वर्ड एक सेंटेंस में रहना, तो पांचों किस ऑर्डर में रहना चाहिए, ये आप पहले सीखोगे। उसके बाद आप इस बात पे ध्यान दोगे कि वो शब्द का फॉर्म क्या होना चाहिए। अगर एक वर्ड के 2-3 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक शब्द है जिसके 2-3-4-5 अलग अलग फॉर्म्स, रूप अवेलेबल हैं, अलग अलग रूप ग्रामर की वजह से, तो रूप पे आपका ध्यान बाद में जाएगा। पहले आपका ध्यान इस बात पे जाएगा कि वो किस क्रम में वो वर्ड्स आ रहे हैं, किस ऑर्डर में वो वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, क्या आप में से कुछ लोग इस बात को मानेंगे कि आपको बचपन में 4-5 बार टेंस सिखाया गया और फिर भी आप उलझते रहे? Yes, sir.
और कोई जो इस बारे में बोलना चाहे कि हमको बचपन में 4-5 बार टेंस पढ़ाया गया फिर भी हम उलझते रहे टेंस में? कोई प्लीज आइए यस आगे। सर। और Yes, कोई, sir. और कोई इस बात को महसूस किया है कि हमने कई बार टेंस पढ़ा लेकिन हम परेशान होते रहे, हमको समझ नहीं आता था कि कैसे फॉलो करें, डिफरेंस मिक्सअप कर जाते थे हम, ऐसा होता था आप Yes, लोगों के sir. साथ? Yes, अब Yes, मैं sir. sir. आपको, Yes, sir. अब आज मैं आपको इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताना चाहूंगा, ऐसा क्यों होता था, ठीक है? ये ऐसा, उसके कई वजह होंगी, उसमें एक वजह मैं बताता हूं, एक वजह और भी वजह होंगी जो बाद में बताऊंगा। एक वजह ये होती है कि अगर किसी को शब्दों का क्रम नहीं दिमाग में बैठा है तो वो फोकस ही नहीं कर पाता है ऑर्डर पे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी जो ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है ये कहता है कि हम लोग रूल्स जो एक लैंग्वेज के हैं वो एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में सीखते हैं। मतलब कुछ रूल्स पहले समझ में आएंगे हमें और कुछ रूल्स बाद में समझ में आएंगे। तो जो रूल्स बाद में समझ में आने वाले हैं अगर उनको फोर्सफुली पहले समझाने की कोशिश की जाए तो फेलियर रिजल्ट होगा। कुछ समझ में आई बात मेरी? Yes, अब sir. बताइए, इसमें एक सेंटेंस में 4 या 5 वर्ड्स हैं, तो हमारा दिमाग पहले किस चीज को एहसास करता है? उन 5 वर्ड्स के ऑर्डर का एहसास पहले करता है, कौन सा वर्ड कहाँ होना चाहिए। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ये सब कम जैसे ही हमारे दिमाग को लगता है। आप महसूस करो जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्या ऐसा था कि आपके लिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो सब गो ही फील होता है एक्चुअली शुरू शुरू में, और आपको कोई भी बोलना पड़े आपके मुंह से गो ही निकलता है, चाहे आपको वेंट बोलना हो चाहे गोइंग बोलना हो, गोज बोलना आपके मुंह से सिर्फ गो ही निकलता है। मैं सही बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes. क्या ऐसा होता है कि आप पेन और पेन्स 2 वर्ड्स होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, आपको किसी की भी जरूरत हो आपके नेचुरली मुंह से पेन ही निकलता है पहले? मैं Yes, सही yes. बोल रहा हूं दोस्तों? Yes. चलिए बोलते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, 3 फॉर्म्स होते हैं टॉल के, तीनों टॉल हैं, लेकिन आपके मुंह पे पहले टॉल ही आता है, आप नहीं सोच पाते आपको टॉलर चाहिए टॉलेस्ट चाहिए शुरू शुरू में। मैं सही बोल रहा हूं? Right. यस सर। अब गौर करिए, क्या है कि कोई भी आदमी जो आपको कह रहा है फॉर्म पे ध्यान देने के लिए, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि सबसे पहले आपको वर्ड ऑर्डर देखना होता है, यानी शब्दों का क्रम देखना होता है। जब इंग्लिश के लैंग्वेज, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स अरेंज होते हैं, अगर आप वो वर्ड्स वैसे अरेंज करना शुरू कर चुके हैं तो फिर आपका ध्यान जाएगा, फोकस करेगा फॉर्म पे। उसके पहले फॉर्म पे फोकस करना आर्टिफिशियली पॉसिबल है, एक्विजिशन में ये ऑर्डर पहले नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली मेरे बोलने का मतलब है कॉन्शियसली, क्या समझे, कॉन्शियसली उसको फोर्स कर सकते हैं। एक्वायर जब करने की बात होगी, यानी कि सबकॉन्शियसली एहसास करने की बात होगी, हासिल करने की बात होगी, तो उसमें पहले रूल आएगा कि आपको ऑर्डर समझना है। दिमाग में ऑर्डर आ जाएगा, फिर आप अपने आप उस पर ध्यान देने लगेंगे फॉर्म पे। तो आपके साथ क्या हुआ कि जब आप टेंस सीख रहे थे तो आपके टीचर्स ने आपका ध्यान किस चीज पे लगाने की कोशिश की? फॉर्म पे, कि देखो इसमें ये फॉर्म यूज होता है उसमें वो फॉर्म यूज होता है, और आप कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे वर्ड ऑर्डर से ही। इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर अलग होता है दोस्तों, तो वर्ड ऑर्डर के साथ आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए थे, इस वजह से आपका फोकस नहीं जा रहा था फॉर्म पे। तो एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर होता है सीखने का, नेचुरल ऑर्डर जो हाइपोथेसिस है ये कहता है कि आप एक सर्टेन ऑर्डर में सीखते हैं, कुछ रूल्स आपको पहले समझ में आएंगे और कुछ रूल्स बाद में। अब जो इन सब चीजों को जानते हैं एक्सपर्ट्स, वो जब कोर्स डिजाइन करेंगे तो वो कौन सी चीजें पहले आपके जहन में डालेंगे जो पहले समझ में आपको आती हैं, और वो Yes, sir. चीजें बाद में डालेंगे कोर्स में, सिलेबस में, जो आपको बाद में समझ में आएंगी। Yes. तो एक ऑर्डर है, फिक्स्ड ऑर्डर है जो कि प्रेडिक्टेबल है, पता है लोगों को कि ये ऐसे होगा, लोग मतलब एक्सपर्ट्स को, ठीक है, वो बता सकते हैं कि पहले ये चीज गौर करोगे आप, फिर ये चीज गौर करोगे। ओके, और देयर इज एविडेंस, इस बात का सबूत है कि ये जो ऑर्डर है नेचुरल ऑर्डर, ये इंडिपेंडेंट होता है
ऑफ द ऑर्डर इन विच रूल्स आर टॉट इन लैंग्वेज क्लासेस। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लैंग्वेज क्लास में कौन से रूल्स पहले सिखाए जा रहे हैं, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो एक्विजिशन का ऑर्डर है, कौन से रूल्स आप पहले एक्वायर करोगे, इसका सीखने के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यानी आपके टीचर्स हो सकता है आपको डिसाइड करें कि चलो मैं आपको आर्टिकल से पढ़ाना शुरू करता हूं इंग्लिश, ठीक है, और आपको आर्टिकल्स के रूल फर्स्ट डे सिखाएंगे, लेकिन आप एक्वायर करोगे लैंग्वेज को लैंग्वेज के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के हिसाब से। आप अक्वायर नहीं करोगे, वो आप कॉन्शियस लर्निंग कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्शियस लर्निंग जो होगी, आप अपनी भाषा में ही उसके बारे में बात करोगे। लेकिन अगर आप नई भाषा को यूज करने लायक बनना चाहते हो, यानी प्रोडक्शन चाहते हो मुंह से या कलम से, तो आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्विजिशन जनरेट करवाता है, भाषा को प्रोड्यूस करवाता है, और जो लर्निंग है वो प्रोड्यूस करने में रोल नहीं प्ले करता है। प्लीज समझिए इस बात को, दोनों का फर्क क्या है। जो लैंग्वेज कॉन्शियसली लर्न किए हम लोग, जो लर्निंग करते कॉन्शियसली, वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। प्रोडक्शन मतलब इंग्लिश बोलने या इंग्लिश लिखने में। तो ये बात इन कितनी बड़ी बात लिखी है कि ये जो नेचुरल ऑर्डर है लैंग्वेज एक्विजिशन का, वो इंडिपेंडेंट है किस चीज से? ऑफ द ऑर्डर इन विच रूल्स आर टॉट इन लैंग्वेज क्लासेस। हम जो क्लास में सिखाने वाले हैं रूल्स, यहाँ पर हम मतलब मैं पर्टिकुलर अपने बारे में बात नहीं कर रहा दोस्तों, ठीक है, जो हम लोग के क्लासेस में चलता है ना कि चलो प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, चलो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, ऐसे चीजें चलती है ना, ये टीचर कॉन्शियसली लर्न करा रहा है आपको। लेकिन जो एक्विजिशन होगी आपकी, उसका ऑर्डर कुछ और होगा। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, वो जरूरी नहीं उसी ऑर्डर में आप सीखेंगे। ये जो नेचुरल ऑर्डर, ये इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई है? फिर से समझा सकता हूं कि अगर आपको लग रहा है अपूर्वा, आप बहुत ही फोकस्ड स्टूडेंट होते हो, आप बहुत मेहनती स्टूडेंट होते हो, आप जैसे स्टूडेंट जो रहते हैं, अगर टीचर ने कहा कि अच्छा चलो प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए, अपूर्वा आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए बेटा। आपने मुझे बताया था कि आप एक क्लास में जाती थी जहां आपने खूब मेहनत किया ग्रामर पर, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आप सीखे थे, राइट? उस क्लास में क्या हुआ था बेटा पता है? कॉन्शियस लर्निंग हुई थी, राइट? कॉन्शियस लर्निंग की थी आपने। और जो भी आप इंग्लिश लिखते और बोलते हो, ठीक है, वो कॉन्शियस लर्निंग की वजह से नहीं, सबकॉन्शियस एक्विजिशन की वजह से। सबकॉन्शियस एक्विजिशन कब होता है, कैसे माहौल में होता है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम लोग। तो सिर्फ बताना यह है कि कौन आदमी पहले क्या सीखेगा, इसका एक ऑर्डर है, इसका एक नेचुरल ऑर्डर बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप कॉन्क्रीट नाउन सीखते हो, उसके बाद आप कुछ मोस्ट कॉमन वर्ब सीखते हो जो कि आपके सामने हैं, जैसे पीना, खाना, दौड़ना, ये सारे वर्ब्स पहले आते हैं दिमाग में। फिर कुछ और वर्ड्स आते हैं। आप गौर करो, एलिमेंट्री लेवल का कोर्स शुरू हुआ है तो किस तरह के वर्ड से हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश, क्योंकि ये वर्ड्स पहले आने चाहिए आपके एक्विजिशन में। लर्निंग और एक्विजिशन का फर्क समझ के चलना। आप जो क्लास कर रहे हो मेरे साथ, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्विजिशन का है। मैं आपके आगे बताऊंगा इस बारे में, एक्विजिशन के बारे में और बात करूंगा, आपको थोड़ा सा रुक जाइएगा। फिर आता है मॉनिटर हाइपोथेसिस के बारे में बात करना है। जैसे आप लैंग्वेज जो अक्वायर करते हो और लर्न करते हो, दोनों दोनों चीज करते हो ना, एक सबकॉन्शियसली अक्वायर कर रहे होते हो, और टीचर कुछ लैंग्वेज आपको कॉन्शियसली टीच कर रहे होते हैं, यानी आप कॉन्शियसली भी सीख रहे होते कुछ चीजें। तो ये जब दोनों मिल करके आपके अटरेंस को प्रभावित करते हैं, यानी जो आपकी अटरेंस है, आपके मतलब अटरेंस मतलब क्या समझते हो दोस्तों? बोलना या प्रोड्यूस करना, यानी लिखना या बोलना, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन होता है, जो लिखना या बोलना होता है किसी नए लैंग्वेज में, वो दो चीज से आता है। एक हमारे सबकॉन्शियस जो हमने एक्विजिशन किया है वो, और जो लैंग्वेज कॉन्शियसली लर्न किया है वो, दोनों चीजें मिलके हमारे इस प्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं। और इसमें दोनों का रोल क्या क्या है वो समझिएगा, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो जो कॉन्शियस लर्निंग है वो एक मॉनिटर या एडिटर का रोल प्ले करता है, और जो सबकॉन्शियस एक्विजिशन है वो रोल प्ले करता है आपके इस चीज का, वो आपको बोलने के लिए उकसाता है, यानी अटरेंस को इनिशिएट करवाता है, जनरेटर है वो।
आपके मुंह से आवाज निकलेगी, कलम से शब्द निकलेंगे। ये किस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों? कलम ऐसे ऐसे लिख के चलने लगेगा, ये किस बात से ये डिसाइड होता है? सबकॉन्शियस एक्विजिशन इसके लिए जिम्मेवार है। अगर आपकी सबकॉन्शियस एक्विजिशन अच्छी चल रही है, खूब कर रहे हैं आप, तो आपका कलम खूब चलेगा, आपकी आवाज खूब चलेगी। बात समझ में आ रही है आपको? और साथ में जो कॉन्शियस लर्निंग हुई है, वो एक एडिटर का काम करेगी। एडिटर क्या होता है? अगर आपके सामने एक फोटो है, तो आप उस फोटो को सुंदर बना सकते हैं ना, एडिट करके। अगर आपके सामने एक बुक रखी है और उसका एडिटर उसमें से काट छाट करके बनाता है कि ये ऐसे रहना चाहिए कहानी। एक फिल्म बनती है लंबी चौड़ी, लेकिन उसका एडिटर कुछ सीन हटा देता है, कुछ डायलॉग्स हटा देता है, कहता है ऐसी होनी चाहिए। तो एडिटर का काम है काट छाट करके सही करना। तो ये जो कॉन्शियसली लर्न किए हुए हो आप रूल्स, ये एडिटर का काम करता है, ये जनरेटर का काम नहीं करता है। तो ये दोनों का रोल समझिए। एडिटर का रोल प्ले करता है कॉन्शियस लर्निंग, और जो सबकॉन्शियस एक्विजिशन हुआ है, वो इनिशिएट करवाता है आपका प्रोडक्ट। आप बोल पाओगे, लिख पाओगे, जब आप सबकॉन्शियसली एक्वायर कर रहे हो लैंग्वेज को। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत कुछ ग्रामर में सुने होते हैं, फिर से बता रहा हूं, ग्रामर में कॉन्शियसली लर्न किए होते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्शन की क्षमता बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि उन्होंने सबकॉन्शियसली बहुत कम एक्वायर किया होता है। ठीक। तो वो बहुत सी बातें बोल सकते हैं इंग्लिश के बारे में, लेकिन वो प्रोडक्शन में फेल कर जाते हैं, यानी इंग्लिश प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो आपका दोनों का रोल पता चल रहा है आप लोग को, कि सबकॉन्शियस एक्विजिशन का क्या रोल है और कॉन्शियस लर्निंग का क्या रोल है। क्या आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? दोनों का अलग अलग रोल। दोनों Yes. समझ में आ रही बात है? दोनों मिल के काम करते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना कि अगर बाय द वे कॉन्शियस लर्निंग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, और वो मॉनिटर एडिटर का काम नहीं करेगा, तो क्या होगा? आप पता नहीं कर पाओगे जो आपने बोला है उसमें राइट रॉन्ग क्या है, करेक्शन का ख्याल नहीं रख पाओगे। देखना, यहाँ पर जरा देखना, वी अपील टू लर्निंग टू मेक करेक्शंस। ये जो मॉनिटर होता है, ये क्या करता है? लर्निंग जो करें हम लोग, कॉन्शियस लर्निंग, ये करेक्शन करवाता है। ठीक है, टू चेंज द आउटपुट ऑफ द अक्वायर्ड सिस्टम। अक्वायर्ड सिस्टम से जो आपने हासिल करा, यानी सबकॉन्शियस एक्विजिशन से जो हासिल किया है, उसमें करेक्शन किस लेवल, किसकी वजह से आता है? ये कॉन्शियस लर्निंग की वजह Yes, से। learning. कॉन्शियस लर्निंग जो है उसको, Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग शबनम, उसको कॉन्शियस लर्निंग जो है उसको एडिट करता है, मॉनिटर करता है, बताता है ये सही ये गलत ऐसे। ठीक, दोनों मिलके काम करते हैं। अलग बात है कि अगर अगर कोई ज्यादा स्ट्रांग बन जाए, एडिटर स्ट्रांग बन जाए, तो इतना ज्यादा करेक्शन करवाना चाहेगा कि अटरेंस ही प्रभावित हो जाएगी, आप बोल ही नहीं पाओगे। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, रिसेंट स्टडी, अगर फोकस ज्यादा है फॉर्म पे, यानी कि कॉन्शियस लर्निंग पूरा एडिटर जो स्ट्रांग अगर बन गया है, तो आप 30% ज्यादा समय लेते हैं बोलने में, आउटपुट निकालने में, और कब 14% लेस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपका फोकस ज्यादा है करेक्शन पे, यानी कि जो आपका एडिटर अगर स्ट्रांग हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ये कॉन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्या है बैलेंस? क्या होगा कि एडिटर जो है मॉनिटर करे, यानी कि कॉन्शियस लर्निंग मॉनिटर करे, लेकिन जनरेट करने वाला जो ये है सबकॉन्शियस एक्विजिशन, वो जनरेट करता रहे और ये मॉनिटर करता रहे, और ये दोनों का बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं और उनका कुछ भी करेक्ट एक्सप्रेस नहीं निकलता, सब उलट पुलट निकलता है। तो क्या हुआ? अक्वायर्ड एक्विजिशन जो है ना, एक्विजिशन जो है सबकॉन्शियस, उसकी वजह से वो बोल रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्शियस लर्निंग कुछ नहीं है, जीरो है, कुछ भी नहीं का ध्यान दे रहे हैं। एडिटर उनका रिजाइन करके बैठा हुआ कि तुम कुछ बोलोगे हम करेक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी हम नहीं करेंगे। आपकी बच्चे का नाम? आद्या। आप ऊपर चले जाइए सीढ़ियों से। हाँ, ओके। तो अब आते हैं जो इनपुट हाइपोथेसिस एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा डिटेल लीजिए कि क्या है ये इनपुट हाइपोथेसिस, क्या है, तो सुनिए गौर से।
इनपुट हाइपोथेसिस का कहना है कि इंसान लैंग्वेज एक्वायर करता है सिर्फ एक तरीके से। आज के बाद हम नहीं चाहेंगे आप लोग कभी किसी से बात करें कि हमको फ्लुएंट होने के लिए क्या करना है। कभी किसी से नहीं बात करने की जरूरत पड़नी चाहिए आज के बाद आपको, ठीक है। ये इनपुट हाइपोथेसिस का कहना है कि इंसान जो है लैंग्वेज एक ही तरीके से एक्वायर करता है। एक्वायर करना और लर्न करना में फर्क समझ में आता है ना आप लोगों को। जब आप लर्न करना चाहते हो तो आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, वहां पे लोग आपको रूल्स बताते हैं और आप कह सकते हो हमको ये पता वो पता है, लेकिन वो आपको इंग्लिश में कलम चलाने नहीं अलाउ करेगा या मुंह इंग्लिश में खोलना अलाउ नहीं करेगा। यानी इसकी वजह से आप इंग्लिश में बातचीत नहीं कर पाओगे, इंग्लिश में अपने इमोशंस लिख नहीं पाओगे, ये लर्निंग की वजह से, कॉन्शियस लर्निंग की वजह से। लेकिन ये जो एक्विजिशन है सारे इंसान उसका एक ही तरीके से करते हैं, और वो क्या है? बाय सबकॉन्शियसली। बाय अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। मैसेज को समझ के ही हम लोग लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। क्या करके? अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, बाय मैसेज अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। मैसेज को समझकर, और गौर करिए इसका मतलब क्या है। बाय रिसीविंग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। जब आपको कुछ बोलता है कोई, ठीक है, कोई आपको कुछ बोलता है, आप उसकी बात समझते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से आप समझते हैं, तो समझे अगर आप कि क्या बोला, तो आपके जहन में लैंग्वेज एक्विजिशन हुआ है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर मैं आपको चाहे हाथ हिला करके मैं इंग्लिश में बोलूं या फ्रेंच में बोलूं, और मैं अगर कुछ किसी तरह से आपको मैसेज पहुंचा दूं, अगर आप मैसेज ले लिए, मेरी बात समझ गए अपने दिमाग में, तो लैंग्वेज एक्विजिशन हुआ है। कैसे होता है लैंग्वेज एक्विजिशन? बाय अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। और गौर करिएगा, और हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अलोंग द नेचुरल ऑर्डर। पता है ना थोड़ी देर पहले नेचुरल ऑर्डर क्या है, कि सर क्या पढ़ा रहे वो नेचुरल ऑर्डर नहीं डिसाइड करेगा दोस्तों। नेचुरल ऑर्डर पहले ही से प्रेडिक्टेबल है, पहले ही से डिटरमिन्ड है वो, कि इस रास्ते आप आगे बढ़ते चलोगे। वो रास्ता आपको जानने की जरूरत इसलिए नहीं है कि क्या होगा नेक्स्ट। मैं बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप कॉन्क्रीट नाउन सीखते हो। आप लोग बताइए, इंग्लिश में सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा था? चेयर, मंकी, राइस, मिल्क, यही सारी चीजें पहले सीखी थी कि नहीं सीखी थी आपने सबसे पहले? यस Yes, sir. उसके उसके बाद आपने ड्रिंक, गो, ईट, यही सब सीखी कि नहीं सीखी? उसके बाद आप ये नेचुरल जो ऑर्डर है उसके साथ साथ आप आगे बढ़ते चलेंगे। अगर क्या होता रहेगा? बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट कंटेन्स अ स्ट्रक्चर एट आवर नेक्स्ट स्टेज। देखिए क्या, कहां स्कूल फेल करी बेटा, मैं समझाता हूं। स्कूल देखिए, हाँ देखिए, ये कहता है कि हम लोग प्रोग्रेस करते रहेंगे लैंग्वेज लर्निंग में, एक्विजिशन में, लैंग्वेज एक्विजिशन में आगे बढ़ते रहेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट। जो इनपुट हमें मिलेगा उसको समझ के, जो कंटेन करता है स्ट्रक्चर्स एट आवर नेक्स्ट स्टेज, जो हमारे अगले स्टेज का स्ट्रक्चर जिसमें होगा। मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं। स्ट्रक्चर्स दैट आर अ बिट बियॉन्ड आवर करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। आपका एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस अभी का होगा, जो भी आप जानते हो एक इंग्लिश में, जो भी आप जानते हो उसको मान लो आई। उसको क्या मान लो आप? आई। आई मतलब आपका करंट लेवल आई, मैं, ठीक है। और प्लीज कोई भी बातचीत ना करिए, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। पूरी पेशेंस और साइलेंस के साथ सुनिए, और अगर कोई आपके आसपास है तो म्यूट कर लीजिए, और प्लीज बी ऑन कैमरा, ओके, ताकि मैं कॉन्फिडेंट फील करूं कि सब लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा किस बात से परेशान हैं? कैसे सीखा जाए आपको ये नहीं पता। हजारों लोग वीडियोस बना रहे यूट्यूब पे, लाखों लोग मुझे बोलना चाहिए, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज के बाद आप कभी किसी से ना पूछना कि इंग्लिश कैसे सीखना है, या फ्रेंच कैसे सीखेंगे, या चाइनीज कैसे सीखेंगे। सब चीज सीखने का एक ही तरीका होगा, ठीक है। चलिए आइए बताता हूं। तो सबसे पहले आपका जो भी लेवल है, आपका मान लो 0 लेवल है, ठीक है, 0, तो 0 है आपका आई, +1 यानी उसका एक लैडर, एक सीढ़ी देखते हो ना, सीढ़ी, खड़ी सीढ़ी, उस पे ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं, तो आप जहां हो अगली सीढ़ी पे आप एक स्टेप ऊपर चढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ऐसी लैंग्वेज में I+1 का थ्योरी है कि जो भी आपका लेवल है अभी, आपको अगर आपको इनपुट मिले, तो आप आई का जो लेवल है उसके +1 उसमें से एक्वायर करोगे। क्या करोगे एक्वायर?
I + 1 Plus अक्वायर one. करोगे, इससे ज्यादा आप अक्वायर नहीं कर सकते। आगे सुनिएगा, we are able to understand language containing unacquired grammar with the help of the context। और हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हमारे सामने जब इनपुट आता है किसी के तरफ से, तो हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा ग्रामर हो सकता है जो हमें नहीं पता है, ठीक है, हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब हमारे सामने आएगा तो उसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की मदद से समझ सकते हैं। और इसमें कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज के बाहर का इंफॉर्मेशन। वो क्या होता है लैंग्वेज के बाहर का इंफॉर्मेशन? आप एक दुनिया में रहते हो ना, इस दुनिया ने आपको जो भी चीजें सिखाई हैं, इस दुनिया में आपने जो कुछ भी देखा है, ये सब आपके लैंग्वेज सीखने में मदद करेगी। हर बात जो आप दुनिया के बारे में जानते हैं, ये बात आपकी कोई नई लैंग्वेज सीखने में मदद करेगी। अगर आप एक जंगल से एक आदमी को लेके आते हैं जो अपनी मदर टंग बोलता है, लेकिन वो हम जैसे सिचुएशंस में नहीं रहा, जैसे हम लोग कई तरह के सिचुएशन जानते हैं, वो नहीं जानता, तो उसको आप वैसे नहीं सिखा पाओगे बाकी लोगों की तरह, क्योंकि उसके पास नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा। इमेजिन करो कि एक लड़का 14 साल का हो गया है, उसके माता पिता ने उसको हमेशा एक कमरे में रखा, खाना पीना दिया और ज्यादा बातचीत नहीं की। अगर उसको ला करके आपके सामने रख दिया जाए कि इसको इंग्लिश सिखाओ या कोई और भाषा सिखाओ, तो उसको सिखाना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। बताइए क्यों? क्योंकि उसके पास दुनिया की जानकारी नहीं है। तो जब आप उसके सामने कोई सिचुएशन लाओगे, कॉन्वर्सेशन लाओगे सिखाने के लिए, उस कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो पहले उसको महसूस ही नहीं किया लाइफ में कभी, इसलिए उसके साथ वो रिलेट नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने क्लास से। जब हम लोग यूनिट 3 में पढ़ाई कर रहे थे और माँ जब वो पूछती है कि सी यू एट 4 o'clock, तो वो बोलता है नो द स्कूल डजंट फिनिश टिल 4। तो उसने कहा ओके देन सी यू एट 4:30। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस एग्जांपल से ये एहसास कराना चाहता हूं कि जब कोई नई जानकारी आपके सामने आती है ग्रामर के मामले में, तो आप कैसे उसको समझते हैं। आप लोगों के साथ, इंसान के साथ क्या होना चाहिए नॉर्मली? जब उसने कहा सी यू एट 4 o'clock, आपको पता है कि सुनने के बाद, कॉन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद, वहां एक होस्ट फैमिली, एक लड़का है, आपको पता है सिचुएशन क्या है, वो जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसकी होस्ट फैमिली बोलती है कि ठीक है तो फिर मिलते हैं, सी यू एट 4 o'clock। और ये बात सब लोग यहाँ पर जिनका लेवल है वो समझने लायक है, सी यू एट 4 o'clock। उधर से जवाब आता है हैकन का, स्कूल डजंट फिनिश टिल 4। तो फिर इधर से जवाब आता है ओके देन सी यू एट 4:30। प्रॉब्लम क्या हुई? आप लोगों ने अपने पीछे रटे हुए नॉलेज, यानी कि कॉन्शियस लर्निंग की वजह से, एक्विजिशन की वजह से नहीं, लर्निंग की वजह से उसको मिस अंडरस्टैंड किया उस सेंटेंस को, और आपने कहा कि इसका मतलब हुआ स्कूल 4 बजे तक खत्म नहीं होता है, द स्कूल डजंट फिनिश टिल 4। आपने शब्दों को जस के तस ट्रांसलेट किया। प्रॉब्लम है, आप सही क्यों नहीं समझ पाए, मैं बताता हूं। क्योंकि आपने उस सिचुएशन को, उस कॉन्टेक्स्ट को अपनी दुनिया में लाके नहीं महसूस किया कि अगर कोई कहेगा कि हमारा क्लास 4 बजे तक खत्म नहीं होता, तो अगला कभी नहीं बोलेगा कि ठीक है 4:30 बजे मिलते हैं। अगले ने कहा था ओके सी यू एट 4:30 देन, है ना? आपने ऐसे सोचा ही नहीं अपने रियल लाइफ में लाके उसको। तो जब हम नया ग्रामर समझना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है नया ग्रामर, नया वोकैबुलरी, कुछ इस तरह की नई भाषा में जो चैलेंजेस आएंगे उसको समझने के लिए, हेल्प लेने के लिए हमारे पास दुनियादारी की हेल्प होनी चाहिए। दुनियादारी जो हम जानते हैं वहां से हम अपनी समझ लेके जाते हैं दोस्तों। जब मुझे मेरी टीचर इटालियन पढ़ाती हैं या जब मैं कुछ स्पेनिश सीखता हूं, तो मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, वही हुआ होगा, वही कहा होगा। तो आप समझ रहे हो ना, दुनिया की जानकारी जो है वो मदद करती है लैंग्वेज सीखने में। आप लोग ये सब चीजें इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको एक खास तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया, ट्रेन कर दिया गया है आपके दिमाग को कि अगर कोई हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड है तो उसका ये हिंदी होता, बात खत्म। ठीक है, मैं आऊंगा वहां पे। आपने ज्यादातर क्लासेस में बैठ के कॉन्शियस लर्निंग की है, सबकॉन्शियस एक्विजिशन आप सबने किया है, थोड़ा थोड़ा। कहाँ किया है? फिल्मों के दौरान, एडवर्टीजमेंट्स के दौरान,
लोगों की बातचीत सुनने के दौरान। सबकॉन्शियस एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जहां भी मैसेज समझ में आ जाएगा किसी का बोला हुआ, तो लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरली होता है। बात समझ में आ रही है? आप लोग सब कुछ ना कुछ बोल पाते हो, 2 लाइन, 1 लाइन, 1.5 लाइन बोल पाते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक्विजिशन की वजह से हैं, लर्निंग की वजह से नहीं। लर्निंग करेक्शन की तरफ ले जाता है, एक्विजिशन जो है प्रोडक्शन की तरफ ले जाता है। आपके मुंह से आवाजें निकलेंगी एक्विजिशन की वजह से। तो बात ये थी कि अगर कोई चीज डिफिकल्ट आएगा I+1 लेवल में, ठीक है, जो आपको मुश्किल लग रही होगी, तो +1 को आप कैसे संभालोगे, +1 को कैसे अपना बनाओगे? क्योंकि I लेवल तो आपका है, +1 जो आया है, उस +1 को आप कैसे अपने पास ले आओगे, वो आप कैसे समझोगे? 2 चीजों की मदद से। एक I यानी कि आपका जो करंट लेवल है लैंग्वेज का, वो मदद करेगा, और दूसरी दुनियादारी की समझ, वो मदद करेगी आपकी। तो आप याद रखना कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, जहां भी चैलेंज आएगा, तो वहां आपको 2 चीजों की मदद लेनी है, ठीक है। एक, आपने अब तक क्या सीखा है वो, अब तक क्या अक्वायर किया है वो, और दूसरा दुनियादारी की समझ। हाँ, वहां कॉन्टेक्स्ट को देख करके दुनियादारी की समझ लगाना। ये दोनों चीजें मिलकर के आपकी मदद करेंगी समझने के लिए। ये दोनों चीजों का यूज करना है हमें। आप मुझे बताइए कि अब तक आप कौन सी चीज यूज नहीं कर रहे थे? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत कम यूज करते हैं लोग। सीधे सीधे शब्द और उसके हिंदी शब्द और ग्रामर सोचते रहते हैं। ट्रांसलेट कर देता है, दुनियादारी यस का सर। दुनियादारी का समझ वहां ले ही के नहीं जाते कि उससे कुछ मदद मिलने वाली है हमें। वो कोशिश नहीं की है आज तक कभी ऐसा, क्योंकि किसने कहा भी तो नहीं है आपको कि ये चीज करना होता है। यस सर। अंदाजा लगाओ, मैं अक्सर बोलता हूँ अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाने का कहाँ से लेना देना है कि सिचुएशन जो है उसके हिसाब से क्या हुआ होगा, राइट? बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो आपको इस बात को समझना है कि जब भी कोई मुश्किल बात आने वाली है, I+1 में जो +1 का चैलेंज है बेटा, वो +1 का चैलेंज हम लोग किन 2 चीजों के सहारे सॉल्व करेंगे? एक तो होगा नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रीवियसली एक्वायर्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। प्रीवियसली एक्वायर्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो आपका आई है ना, ये प्रीवियसली एक्वायर्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब पहले से जो हासिल हो चुका, अब तक जो हासिल हो चुका है आपका लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी जो स्किल आपके पास आ गई है वो, और आपके दुनिया की नॉलेज, ये दोनों मिल करके आपको एक्स्ट्रा अनअक्वायर्ड ग्रामर समझने में मदद करेंगे। मैं एक एग्जांपल देके बताऊं बेटा आप लोगों को? चलिए मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। You know, recently, today only, I saw a video on Facebook or YouTube maybe. And this video, there are 4 people sitting on a sofa. There are 4 friends sitting on a sofa. ठीक है? समझ में आई है? मैंने अभी एक इंग्लिश में लाइन बोला आपके लिए, आप समझ गए थे ना मैंने क्या बोला? Yes. बट अगर आप समझ गए तो आप मानिए इस बात को कि लैंग्वेज एक्विजिशन हुआ है। वो तुरंत रिजल्ट नहीं होता बोलने में। लैंग्वेज एक्विजिशन होते का मतलब नहीं कि तुरंत वो बोल दिया आदमी, ठीक है। वो पकता है धीरे धीरे। एक्विजिशन के बाद रिजल्ट होता है स्पीकिंग का। तो मैंने कहा देयर आर 4 पीपल सिटिंग ऑन अ सोफा, राइट? तो आपको पता चला कि इसमें एक नया ग्रामर पॉइंट था, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं उस ग्रामर को समझने में। पता है क्यों? आपने अपनी दुनियादारी की समझ लगाई है और आप अंदाजा लगा लिए हैं। मैंने क्या कहा? आई सॉ वीडियो टुडे, इन दैट वीडियो देर आर 4 फ्रेंड्स, 4 पीपल सिटिंग ऑन अ सोफा। तो आप वीडियो इमेजिन करिए तो जो मैंने देखा, क्या देख रहे हो आप उस वीडियो में? क्या देख रहे हो हिंदी में बताओ? 4 पीपल सोफा में बैठे हैं। 4 लोग सोफा पे बैठे हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छा। सब लोगों ने यही देखा होगा, इमेजिन किया होगा। और मेरा सेंटेंस क्या था? मेरा सेंटेंस क्या था? देर आर 4 पीपल सिटिंग ऑन अ सोफा। जरूरी नहीं कि सारे लोग रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि इतनी मेमोरी जबरदस्त नहीं होती कि एक बार में 2 बार में कोई चीज याद हो जाए पूरी तरह से। लेकिन क्या आपको पार्टिसिपल का ज्ञान नहीं होना रोका इस सेंटेंस को समझने में? क्योंकि जो ये सिटिंग वर्ड है, ये एक पार्टिसिपल यस था। सर। ये सिटिंग जो यहाँ पर मैंने बोला, वो एक पार्टिसिपल था। Yes, मैंने आपको participle पार्टिसिपल था, yes, सिखाया sir. है। कितने लोग कहेंगे कि हम पार्टिसिपल जानते हैं क्या होता है? बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पढ़ाया गया होगा। लेकिन फिर भी क्या आपका पार्टिसिपल का ज्ञान नहीं होने से क्या ये सेंटेंस समझने में मुश्किल हुई आपको? नहीं।
पता है क्यों? क्योंकि आप जो वर्ड्स मैं लेके आया वो वर्ड्स आपके लेवल पे थे, ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्रामर था वो कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट मतलब नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, World. ये जो है वर्ल्ड। आपके सामने। आप जानते हैं सोफा पे लोग बैठते हैं, ये पता है ना आपको? आप इमेजिन करिए कि Yes. एक आदमी ने कभी सोफा नहीं देखा कि सोफा क्या चीज होती है, जंगल से वो आया आदमी, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसको भी मैं यही लाइन बोलूं, इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं उसको, ठीक है। वो सोफा चीज नहीं जानता, सोफा क्या होता है, सोफा नाम का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं है, उसके घर में बैठने के लिए कोई चीज नहीं है, जब भी लोग बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? नीचे. जमीन जमीन पे। पे बैठते हैं, उसके लाइफ में कॉन्सेप्ट ही नहीं सोफा का, ठीक है। अब बताओ, जब मैं उसको ये बात बोलूंगा, देयर आर 4 people सिटिंग ऑन अ सोफा, तो क्या वो इस ग्रामर को इतनी आसानी से हैंडल कर पाएगा? नहीं. तो दुनिया की समझ मायने रखती है लैंग्वेज समझने के लिए। Yes. यस। आपको सिटिंग वर्ड यहाँ पर एक पार्टिसिपल था, क्या आप पार्टिसिपल नहीं जानने की वजह से मुश्किल में आए? नहीं। अगर मैं ऐसी लाइन 5 बार 10 बार 20 बार आपके सामने लाऊंगा, इनफ टाइम्स वर्ड बोला जाता है, क्योंकि इनफ सबके लिए अलग अलग होता है दोस्तों, ठीक है। अगर इनफ रेपिटेशन हो इसकी, तो आप यही चीज बोलने लग जाओगे। फिर आपसे कोई पूछेगा कि आपको पार्टिसिपल पता है, तो आप बोलोगे नहीं, हमको तो नहीं पता पार्टिसिपल क्या होता है। लेकिन क्या आप पार्टिसिपल यूज कर रहे होंगे अपने बातचीत में करेक्टली? जवाब दीजिए। आप अगर ये सेंटेंस इनफ नंबर ऑफ टाइम सुनेंगे, इस तरह के सेंटेंस, तो आप बोलने लग जाएंगे ना इसको, क्योंकि लैंग्वेज इनपुट के हिसाब से आपके अटरेंस आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही रिपीट करोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ग्रामर क्या, सॉरी, पार्टिसिपल क्या, क्या राइट। होता है? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि ये जो नया चैलेंज आएगा I+1 में, इसको 2 चीज मिलके सॉल्व करेंगे। एक हमारी पुरानी अब तक की सीखी हुई भाषा जो हमने अक्वायर किया है, सीखी हुई नहीं बोलना चाहिए मुझे, आई एम सॉरी, अब तक अक्वायर की हुई स्किल, जो हमारी लैंग्वेज की स्किल अक्वायर हुई है वो, और दूसरा दुनियादारी का समझ, ठीक है। दुनियादारी का समझ वाला फैक्टर अब से ज्यादा एक्टिव होगा। Yes. और सुनिए यहाँ पे, ये जो एक्विजिशन होती है, इनपुट जो इसमें आता है, इनपुट हाइपोथेसिस में, यहाँ केयर टेकर मतलब टीचर जो होते हैं, ठीक है, जो इनका काम है सिखाना लैंग्वेज, प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट बाय लिमिटिंग स्पीच टू द चाइल्ड टू द हियर एंड नाउ। अगर आप किसी बच्चे को, सब छोटे बच्चे को सिखाना चाहते हैं जिसका 0 लेवल पे है, तो आप उससे क्या बात करते हैं पता है? हियर एंड नाउ। उसको कहते हैं कम हियर, ऐसे करके हाथ करते हैं और उसके कान में आवाज जाती है कम हियर। मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश का एक वर्ड नहीं बोलते थे, ठीक है दोस्तों, ABCD वाले बच्चे थे वो, ABCD वाले बच्चे, ठीक है। तो जब मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने सबसे पहले पता है क्या सीखा? कम हियर। क्योंकि मैं बार बार बोलता था ना उनको कम हियर, तो वो फट से बोलने लग गए। 2 से 3 दिन के बाद वो बोलने लगे थे दूसरे को कम हियर। ठीक है। तो बताइए उन्होंने क्या किया था? सबकॉन्शियसली एक्वायर किया था या कॉन्शियसली लर्न किया था? Substantially acquired किया था. और जो सबकॉन्शियसली एक्विजिशन होती है वो रिजल्ट किस चीज में होता है? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में, रिजल्ट राइटिंग प्रोडक्शन में होता है। तो स्पीकिंग। और हाँ, स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्शन में। अब आप बता सकते हैं कि आप लोग इंग्लिश बोलने में या लिखने में अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ और सब लैक कॉन्शियस। ऑफ एक्विजिशन, लैक ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पर 2 फैक्टर्स बताता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे सर हमारा बोलने वाला प्रोडक्शन ज्यादा कमजोर है, लिखने वाला प्रोडक्शन ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। आपने कई कहानियों की किताब पढ़ी है इंग्लिश में? आपने अपने सब्जेक्ट की किताबें पढ़ी इंग्लिश में? हिस्ट्री की, साइंस की पढ़ी ना? तो जो Yes, sir. आंख से जो इनपुट हुआ, अब जब आप अपनी लैंग्वेज की किताब पढ़ रहे थे, इंग्लिश की किताब पढ़ रहे थे, जैसे साइंस की किताब पढ़ रहे थे, आपका फोकस साइंस पे था और उसी समय एक्विजिशन होता रहा। आप पढ़ते जा रहे थे और आपका ध्यान लैंग्वेज पे नहीं था, आपका ध्यान था सब्जेक्ट मैटर पे। यस और नो? यस सर। yes, आपका ध्यान रहता है सब्जेक्ट मैटर पे। अगर आप एक लड़की की कहानी पढ़ रहे हैं जिसकी मम्मी उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती है, और आप जब कहानी पढ़ रहे हैं, आप इमोशन फील कर रहे हैं, आप भले ही पूरा फोकस आपका लैंग्वेज पे नहीं है, लेकिन चूंकि आप मैसेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आपको मैंने कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन होने के लिए
मैसेज को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, राइट? तो जो मैसेज अंडरस्टैंड किया, जो एक्विजिशन हुआ, वो ज्यादा क्या हुआ, कान से हुआ या आंख से हुआ? कान से काम से हुआ। आँख से नहीं, किससे कान हुआ? से। कान से। नहीं, स्कूल में जब आप थे तो ज्यादा ज्यादा लैंग्वेज सुन- एक्विजिशन किससे हुआ आपका? आँख से हुआ सर। आँख से। आपने ज्यादा घंटे बिताए आंखों से एक्वायर करते हुए लैंग्वेज, अकेले में अच्छा। बैठ के पढ़ते हुए। कान में आपको अपॉर्चुनिटी कब मिली सुनने की इंग्लिश? इस वजह से जो आंखों से एक्वायर होता है, ठीक है ना, वो कलम से बेहतर प्रोड्यूस होता है, और जो कान से एक्वायर होता है वो मुंह से मुंह प्रोड्यूस से। वो होता है। मुंह से नहीं। अब ये कनेक्शन अगर समझ में आ जाए तो आप ये समझ गए कि क्यों आप में से कुछ लिखते समय ज्यादा कंफर्टेबल हैं बोलने के तुलना में, और जिन्होंने रीडिंग वाला एक्विजिशन भी नहीं करा है वो लिखने में भी उतने ही परेशान रहेंगे दोस्तों, नहीं लिखा पाएगा, ऐसे कलम लेके बैठ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो Yes, एक्विजिशन sir. विल लीड टू प्रोडक्शन, एक्विजिशन विल लीड टू प्रोडक्शन। तो अगर प्रोडक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, It is a process, sir. जो मैं बोला अब तक उसके हिसाब से सोच के बताओ। जब मैं कह रहा हूं एक्विजिशन विल लीड टू प्रोडक्शन, ठीक है, तो मुझे बताओ कि प्रोडक्शन यानी स्पीकिंग जो है वो रिजल्ट है या प्रोसेस है? रिजल्ट है। रिजल्ट है। रिजल्ट है, ऑब्वियसली रिजल्ट है, क्योंकि मैं कह रहा हूं एक्विजिशन विल लीड टू प्रोडक्शन एंड लर्निंग विल वर्क एज एन Process. एडिटर, वर्क एज एन एडिटर। तो वो लोग जो कहते हैं कि 15 मिनट रोज बोलो, 20 मिनट रोज बोलो, वो ये एडवाइस उसके लिए है जो ऑलरेडी प्रोडक्शन करने के लायक है, लेकिन जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा उसके लिए ये सब एडवाइस का क्या मतलब बनता है कि 15 मिनट रोज बोलो और 20 मिनट रोज बोलो? जैसे आप में से कितने लोग जब मेरे पास आए तो सेंटेंस फॉर्म कर रहे थे कंफर्टेबली इंग्लिश में, तो अगर आपको कोई एडवाइस दे 15 मिनट रोज बोलो, तो आप कहेंगे यार कैसे, मेरे से तो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो 15 मिनट क्या बोलूं? तो वो रिजल्ट को प्रोसेस बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग कि 15 मिनट बोलो। बोलना इज अ रिजल्ट किस प्रोसेस का? Acquisition का. एक्विजिशन का रिजल्ट है वो। आपको प्रोसेस करना है तो क्या करना है, एक्विजिशन करना है। और वो एक्विजिशन मतलब I+1 कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट उसका की है कि नहीं, कि अगर इनपुट नहीं है तो कोई एक्विजिशन का खेल हो पाएगा, प्रोसेस हो पाएगा? नहीं। तो सबसे पहला सबसे सेंटर चीज क्या है? लैंग्वेज I. इनपुट। इनपुट, लैंग्वेज अगर इनपुट। आपके पास इनपुट हो, आप गौर करिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा है speaking is a result of acquisition not its cause, speaking is a result of acquisition। और वो सारे लोग जो बोल रहे हैं वीडियोस में कि अगर आप 10-15 मिनट रोज इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता इंप्रूव हो जाएगी, वो किसके लिए बोल रहे हैं? जो इंग्लिश ऑलरेडी बोल रहा है या जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है? जो ऑलरेडी बोल रहा है, जो जिसके बोल पास ऑलरेडी पाता है इनपुट है। उसके लिए, हाँ, जो बोल पाता है उसके लिए। लेकिन जो नहीं बोल पाएगा उसके लिए स्पीकिंग प्रोसेस नहीं है, स्पीकिंग क्या है, रिजल्ट है। किस चीज का? एक्विजिशन का। तो अगर बाय द वे सुलेखा भी इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्या वो बोलने की कोशिश करें या वो एक्विजिशन के प्रोसेस को फॉलो करें और वेट करें स्पीकिंग एज अ रिजल्ट होने का? एक्विजिशन फॉलो। एक्विजिशन को फॉलो करें। राइट। अभिषेक देर से आए, पता नहीं उन्होंने मेरी ये एडिटर वाली बात सुनी कि नहीं। अभिषेक, आपके साथ क्या है बेटा कि आपका एडिटर जो है उस ये कहता है हम काम नहीं Sir, I करेंगे। listen that thing. हाँ, I listen the whole thing. जब आप बोलते हो तो आपका Yes, एडिटर ना वो आराम कर रहा The होता है, वो काम नहीं subconscious कर रहा mind is होता है। working, but हाँ, conscious mind एग्जैक्टली, is not working because that time I'm not. एग्जैक्टली। Oh my Yes, sir. God, very well done, very well done. Very happy that you understood exactly what I meant. Yes, Exactly. sir. It's चलिए very आगे related to देखते हैं। me. यस, 100%। अब जो Yes, बातें sir. मैं बोल रहा हूँ ये सब लोगों पे अप्लाई होंगी दोस्तों, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना, इट्स अबाउट ऑल ह्यूमंस। Yes, sir. ओके, लेट्स सी। और जरा सुनिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, इफ इनपुट इज अंडरस्टूड, बी केयरफुल बेटा, बी केयरफुल। इफ इनपुट इज अंडरस्टूड
इफ इनपुट इज अंडरस्टूड, अगर इनपुट समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग शुरू से ही क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्या होता है, जो समझ में आ जाए, कॉम्प्रिहेंसिबल। ओके, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ में आने लायक। इफ इनपुट इज अंडरस्टूड, अगर इनपुट समझ में आ जाए, एंड देयर इज इनफ ऑफ इट, एंड देयर इज इनफ ऑफ इट, और जितना चाहिए उतना हो। और यहाँ इनफ क्यों लिखा है, क्योंकि इनफ उज्मा के लिए अलग होगा, निशात के लिए अलग होगा, सुलेखा के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। लेकिन अगर इनपुट इनफ हो, ठीक है, द नेसेसरी ग्रामर इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। जो जरूरत की ग्रामर होती है वो अपने आप आ जाती है ऑटोमेटिकली। अभी मैंने भी जो एग्जांपल दे के बताया कि आपके लिए इसमें इनपुट वाले मेथड में नेसेसरी ग्रामर इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। द लैंग्वेज टीचर नीड नॉट अटेम्प्ट डेलिबरेटली टू टीच द नेक्स्ट स्ट्रक्चर अलोंग द नेचुरल ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है कि टीचर जानबूझ के पढ़ाए सिखाए अगला स्ट्रक्चर जो आने वाला, जो दिक्कत होने वाला उसको बताइए, जरूरी नहीं है। उसको चाहिए कि वो लैंग्वेज क्रिएट करे, उसको चाहिए कि वो इनपुट क्रिएट करे, और स्टूडेंट्स एक्वायर करेंगे, और जो जरूरी ग्रामर है वो ऑटोमेटिकली हासिल हो जाएगा। आप में से कई लोग, आपको नहीं पता ये बारे में, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसे ऐसे ग्रामर रूल्स फॉलो कर रहे हैं जिसका आपको आइडिया नहीं है। मैं एक ग्रामर क्लास शुरू करूंगा, आज करूं कल करूं, शुरू करूंगा एक ग्रामर क्लास। दो तरह के ग्रामर क्लासेस शुरू करूंगा, एक टेक्स्ट बुक ग्रामर, एक टेक्स्ट बुक ग्रामर शुरू करूंगा जिसमें सारे ग्रामर रूल्स बात होंगी, ठीक है ना, हर चीज। और एक क्लास शुरू होगी सिर्फ कंपटीशन के लिए। इरशाद, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपकी आवाज ये कर रही थी, माइक नॉइजी हो रही थी। तो मैं बता रहा था कि ये जो ग्रामर का मामला है, अगर आप नेचुरल, ये क्या कहते हैं इसको, लैंग्वेज एक्विजिशन करवाते हैं, तो वहां पे वो ग्रामर जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो प्रोडक्शन के लिए ग्रामर ऑटोमेटिकली हासिल होता है। आप में से कई लोग कितना सही बोल रहे हैं, सही मेरे कहने का मतलब कौन कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं आपको अंदाजा तक नहीं है। अगर मैं उन रूल्स के बारे में बात करने लगूं तो आप कहेंगे अरे ये कैसे, ये रूल्स कहाँ से आए, ये रूल्स तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आप सब उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे रूल्स को। जैसे मैं केस की बात करूं, मैंने कभी यहाँ पर केस फॉलो किया, केस के बारे में बात की है दोस्तों आप लोगों के साथ, केस के बारे में बात की कभी भी नहीं ना। लेकिन आप में से ज्यादातर ऑटोमेटिकली, अब तक यूनिट 4 खत्म होते होते आप लोग, ज्यादातर लोग केस सही से यूज करना सीख चुके हैं, जबकि मैंने आपको केस ग्रामर के हिसाब से नहीं बताया। लेकिन जो इनपुट हुई ना, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मिली आपको, उसकी वजह से आप में से ज्यादातर केस को सही से यूज कर रहे हैं। तो पॉइंट यही था कि लैंग्वेज टीचर को जरूरत नहीं होती है स्पेशली अलग से ग्रामर एक्सप्लेन करने की अगले लेवल के लिए। वो तैयार रहते हैं अगर इनपुट सही से समझ में आ जाए, ठीक है, एंड इफ देयर इज इनफ ऑफ इट, अगर जितना होना चाहिए उतना मिले इनपुट, तो फिर ऑटोमेटिकली आ जाती है। टू बी मोर प्रिसाइज, इनपुट इज द एसेंशियल एनवायरमेंटल इंग्रेडिएंट। सबसे जरूरी चीज क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए? क्या है दोस्तों? ये इनपुट कितने तरह से आप ले सकते हैं? सुन के और देख के यानी पढ़ के और सुन के। यानी कि अगर किसी को प्रोडक्शन तक ले जाना है अपने आप को, तो क्या क्या करना होगा उसे? सुनना पड़ेगा ज्यादातर, पढ़ना है और सुनना है। और किसी को उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है जो कहते हैं स्पीक फॉर 15 मिनट्स एवरी डे, स्पीक फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। आगे और सुनिएगा दोस्तों। The acquirer does not simply acquire what he hears। अच्छा, ये बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो सुन लिया acquire कर लिया। There is a significant contribution of the internal language processor। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, उसको हम लोग कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी सुनेंगे वो आप अक्वायर कर लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और इस वजह से उनको लिसनिंग का कभी पावर नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो हियर करेंगे, कुछ भी जो हियर करेंगे, द एक्वायरर डज नॉट सिंपली एक्वायर व्हाट ही हियर्स। ऐसा नहीं कि जो आप सुनते हैं वो सिंपली एक्वायर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक
और एस्पेक्ट आइए, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जितनी भी इनपुट आपके दिमाग में जाती है, आपके कान में जाती है, एक्वायर डज नॉट प्रोसेस ऑल द प्रोसेस फॉर एक्विजिशन। सारे इनपुट को आप प्रोसेस नहीं कर पाते एक्विजिशन के लिए। यानी जो भी चीजें आप सुनते हो, मैं इंग्लिश में जब आपसे बात करता हूं तो बहुत कुछ बोलता जाता हूं, तो आप जो भी सुन रहे सारा कुछ प्रोसेस नहीं करते एक्विजिशन के लिए। यानी कि सिर्फ सुन लेने से प्रोसेस एक्विजिशन नहीं होता, आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है जो सुनता है उसको, और तब एक्विजिशन होता है। इसके लिए LAD itself generates possible rules according to the innate procedures। गौर करिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब सुनते हैं मेरे मुंह से, मान लो 10 मिनट मैंने इंग्लिश में आपसे बात की, तो 10 मिनट में बहुत कुछ बोला, यहाँ सारे लोग अलग अलग लेवल्स पे हैं, तो सारा सब लोग प्रोसेस नहीं करेंगे, सब अपने अपने I+1 के हिसाब से प्रोसेस कर रहे होंगे जो प्रोसेस करने लायक है। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग फिल्टर्स बोलेंगे। कौन कितना ज्यादा प्रोसेस करेगा, कौन कितना ज्यादा एक्विजिशन करेगा, ये कुछ फिल्टर्स पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे उन फिल्टर्स की। प्रोसेस तो समझ में आ गया? ये इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं फिल्टर्स की, कि जब आप कोई एक्विजिशन के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट आता है वो तो जरूरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, मतलब इसके होने से खाली नहीं हो जाएगा। द एक्वायरर नीड्स टू बी ओपन टू द इनपुट। जो सुनने वाला है, यानी एक्वायरर मतलब समझ रहे हो ना, जो लैंग्वेज को सीख रहा है, उसका जरूरी है कि वो इनपुट के लिए ओपन भी हो। मैं आपके घर के सामने ढेर सारा सोना लेके आ गया, आपने दरवाजा बंद रखा, तो सोना आपके घर में तो नहीं जाएगा ना, दरवाजा आपने बंद कर रखा है। तो पॉइंट ये है कि मैं बहुत सारा इनपुट डाल रहा हूं आपके अपने तरफ से, लेकिन आप ओपन नहीं है उस इनपुट के लिए। तो जब आप ओपन नहीं होंगे तो कैसे वो इनपुट जाकर के एक्विजिशन में रोल प्ले करेगा? तो क्यों ओपन नहीं होते कुछ लोग, ये जानिए। ठीक है दोस्तों, क्यों कुछ लोग ओपन नहीं होते? जब वो सब क्लास में आते ही है सीखने के लिए, तो व्हाई आर दे नॉट ओपन टू एक्विजिशन और टू द इनपुट? इसका रीजन होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, देखिएगा। द अफेक्टिव फिल्टर इज द मेंटल ब्लॉक। देखिए, कुछ स्टूडेंट जब क्लास में आते हैं तो एक मेंटल ब्लॉक के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? एक मेंटल ब्लॉक के साथ आते हैं। मेंटल ब्लॉक। दैट प्रिवेंट, जो रोक देता है फ्रॉम फुली यूटिलाइजिंग द कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दे रिसीव फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि आपके सामने चीजें आई, इनपुट आई, लेकिन चूंकि आपका इफेक्टिव फिल्टर जो है, मेंटल ब्लॉक जो है, वो रोक देगा, आपको उसको यूज करने ही नहीं देगा एक्विजिशन के लिए। तो ऐसा समझिए कि मैं एक कागज को भिगाना चाहता हूं, लेकिन आपने उस कागज पे पहले ही मोम रगड़ दिया है ढेर सारा, तो क्या मैं उस कागज पे पानी डाल के भी उसको भिगा पाऊंगा? नहीं भिगा पाऊंगा, पानी स्लिप कर जाएगा। तो वैसे ही जो अफेक्टिव फिल्टर्स होते हैं, जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, ये इनपुट आने पर भी उस इनपुट का असर नहीं होने देता। अब ये जरूरी है कि नहीं जानना अफेक्टिव फिल्टर्स? क्योंकि आप सब लोग इनपुट तो खूब ले रहे हैं क्लास में मेरे बैठ के, और ऑडियो फाइल्स के साथ भी। तो क्या वजह हो सकती है कि आप, हो सकता है आप में से कुछ कम सीख रहे हो? तो देखिए क्या है, ये जो मेंटल ब्लॉक होता है, व्हेन इट इज अप, जब ये ऊपर है, यानी कि गार्ड अप, मतलब कि काम कर रहा है मेंटल ब्लॉक, ठीक है, तो क्या होता है? द एक्वायरर मे अंडरस्टैंड व्हाट ही हियर्स और रीड्स। वो हो सकता है वो पढ़ के और सुन के समझ जाए जो पढ़ रहा है और सुन रहा है, बट द इनपुट विल नॉट रीच द LAD। लेकिन वो इनपुट जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि जो प्रोसेस करता है इनपुट को एक्विजिशन के लिए, वो है LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वहां तक नहीं पहुंचेगा। आप उसको सुन के समझ भी जाएंगे। आप में से कई, कल मैंने सैटरडे को मैंने क्या किया था, इनको हटा दिया था क्लास से, है ना, याद है आपको? कहा कि नहीं आप हट जाएं, आप जाएं क्लास से, क्योंकि इधर उधर ध्यान लगा रहे थे वो। तो जब आप यहाँ, तो कहा जा रहा है कि कई बार आप सुन के समझ भी रहे होंगे, फिर भी LAD तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसकी रीजन बताता हूं। दिस अकर्स, ऐसा होता है, व्हेन द एक्वायरर इज अनमोटिवेटेड, जब उसका मोटिवेशन ही डाउन हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि वो इंग्लिश बोलेंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक। तो जब वो अनमोटिवेटेड होंगे तो चाहे कितना भी इनपुट आए वो एलईडी तक नहीं पहुंचेगा। वो सुन के समझ भी जाएंगे लेकिन वो एलईडी तक नहीं जाने देंगे उस इंफॉर्मेशन को, इनपुट को, और वो एक्विजिशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोडक्शन को बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जो इंग्लिश पढ़ के और सुन के अच्छा खासा समझ लेते हैं, टीचर क्या बोला वो समझ जाते हैं, किताब में क्या लिखा है वो भी समझ जाते हैं, लेकिन वो अपनी इंग्लिश बोलने की क्षमता को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसा गौर करते हैं आप में से भी कुछ होंगे ऐसे। यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मोटिवेटेड ही नहीं है, इंग्लिश उनके लिए मायने ही नहीं रखता, उनको कोई खुशी ही नहीं मिलती है इंग्लिश बोल करके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप मोटिवेटेड हो लैंग्वेज लर्निंग के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। एक एक फैक्टर है दोस्तों, ये एक फैक्टर है, और भी फैक्टर्स हैं। कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे होता है। जैसे महफूज की बात करें, वो मोटिवेटेड भी कम है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन है। महफूज बेटा कहाँ हो? और वो एंग्शियस भी रहता है क्लास में, एंग्शियस मतलब परेशान, टेंशन में, एंग्शियस। अरे ये क्या हो रहा है Whose दोस्तों, mic is noisy? ये क्या हो रहा है यार? किसके तरफ से हो रहा है? प्लीज म्यूट महफूज की योरसेल्फ। तरफ से। ओके। तो अनमोटिवेटेड होना कितना बड़ा फैक्टर है दोस्तों, आप समझ रहे हो? कुछ स्टूडेंट्स 6-6 साल 7-7 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहते हैं, अच्छी खासी इंग्लिश समझ रहे होते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं, टीचर का बोला हुआ भी समझ लेते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पाते इंग्लिश अच्छी। पता है ना क्यों? क्योंकि उनको कोई मोटिवेशन नहीं है, इसलिए वो जो समझ रहे हैं वो एलईडी तक नहीं जा रहा, इसीलिए वो एक्विजिशन नहीं हो पा रही होगी। अब ये क्या है कि एलईडी तक नहीं जाएगा? मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप चाहोगे कि हाँ हम लैंग्वेज सीखें, तो जो इनपुट आएगा ना उसको प्रोसेस करेगा आपका एलईडी, और वो उसको हासिल कर लेगा और बाद में प्रोडक्शन में मदद करेगा। जो तो इसमें इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आप चाहते हैं ये चीज हासिल करना? आगे आइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है? क्या आप अपने आप को मानते हो कि आप चीजें हासिल कर सकते हैं? कुछ लोग अपने आप को उस लायक मानते ही नहीं, अंदर में, मुंह पर तो बहस करने के लिए तैयार है, कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको, लेकिन अंदर ही अंदर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। एंग्शियस होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तो डिफेंसिव भी हो जाते हैं। डिफेंसिव होने का मतलब उनको लगता है कि क्लास में आएंगे और बेवकूफ दिखेंगे, मुंह बंद करके रहते हैं। वो चाहते नहीं कि उनको किसी को पता चले कि उनमें कोई कमजोरी है। उनको डर लगा रहता है कि सबके सामने वो बेइज्जत होंगे, उनकी कमजोरी रिवील हो जाएगी। ये सब चीजें, थॉट्स जो हैं, ये सब क्या हैं? अफेक्टिव फिल्टर्स हैं। ये सब आपके एक्विजिशन को स्लो कर देंगे, इनपुट आपका बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जरूरी क्या क्या है कि आपके लिए बहुत जरूरी है, व्हेन द फिल्टर इज डाउन द acquirer इज नॉट कंसर्न्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इन लैंग्वेज एक्विजिशन। जब फिल्टर डाउन होता है, यानी कि फिल्टर नहीं काम कर रहा है, इस तरह का कोई अफेक्टिव फिल्टर नहीं है, आप रिलैक्स्ड होते हैं, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गलती करोगे, क्या करोगे, आप गलती करोगे फिर सुनोगे फिर सही करोगे, आपको टेंशन नहीं होता है। when he or she considers themselves to be a potential member of the group speaking the language। और ये तब होगा जब आप अपने आप को रिलेट करोगे उस क्लास से, उस ग्रुप से जहां पे आप सीख रहे हो। वहां पे आपको इस बात को सोचना होगा कि हम भी इनमें से एक हैं। अगर आप अपने आप को अलग मानते हो, अगर आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि ये मेरे साथ नहीं है, तो ये सारी चीजें भी इमोशनल अफेक्टिव फिल्टर्स भी बनते हैं दोस्तों। तो क्या आपको समझ में आई बातें कि क्या चीज नहीं करना और क्या चीज करना है? कौन सी चीज आपको रोकेगी इंग्लिश सीखने से? सबसे पहले स्ट्रेस्ड रहना है कि कंफर्टेबल रहना है क्लास में? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। इस मामले में मैं सबसे ज्यादा आप लोग को कहूंगा, रोल मॉडल बनाना है तो संयुक्ता मैम को बनाए। अगर वो यंग स्टूडेंट होती आप लोग की तरह, तो मुझे लगता है वो मेरा माथा खा जाती, ठीक है ना, इतनी रिलैक्स रहती वो। मतलब कि वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। आप समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब? कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैं उनको, मजा उनका उनका बुरा नहीं बता रहा। जब वो इस उम्र में इतने रिलैक्स्ड होकर के सुनती है बातों को, गलतियां करने से नहीं हिचकती हैं, तो आपको पता है ना कि उम्र से ये सब चीजों पर फर्क पड़ जाता है। जब आप 17-18-19 के होते हो तो आप ऐसे ही बिंदास रहते हो। तो मैं तो समटाइम्स आई विश कि संयुक्ता मैम मेरे क्लास में होती जब 19-20 की होती, ठीक है। हाँ संयुक्ता मैम, फिर पता नहीं और क्या क्या होता है, ठीक है।
ओके, मजाक अपने जगह। मैं बता रहा था कि ये चीज बहुत जरूरी कि आप सब लोग रिलैक्स रहें। और आप गौर करते हैं, मैं आप लोग के साथ खूब हंसी मजाक करता हूँ, किस वजह से? इसलिए ताकि आप सब कंफर्टेबल फील करें। कुछ लोगों को ये बात अलग समझ में आती है, क्योंकि टीचर्स नॉर्मली हमारे जैसे जगहों पे थोड़े स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते हैं, और स्टूडेंट्स भी ऐसे टीचर्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऐसे टीचर्स को ले चलो टीचर बोला जाता है जो ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन मैं अपने इमेज के रिस्क पे, अपने इमेज को दांव पे लगा करके आपकी हेल्प करता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपका स्ट्रेस्ड आउट रहना आपके लिए सही नहीं है, आपके सीखने के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं हंसी मजाक और कोई भी बात पे ज्यादा रिएक्शन नहीं देना पसंद करता। हाँ, जहां पर कुछ मैसेज आपको पहुंचाना है वो बहुत जरूरी है। अब पिछले 2 दिनों मैंने 2 स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, सुलेखा जी को बाहर करना क्लास से और महफूज को क्लास से निकालना। और ये दोनों काम मैंने गुस्से में नहीं किया था, बस ये बताने के लिए किया था इन लोगों को कि आप देखें। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या इनका अफेक्टिव फिल्टर अप था या डाउन था जब इन्होंने ये डिसीजंस लिए थे? खासकर सुलेखा जी ने जो डिसीजन लिया था, गलतियां ना करने के लिए उन्होंने किया होगा ये चीज कि चलो देख के लिखते हैं, इसमें गलती नहीं होगी, हाँ या ना? Yes. यस सर। तो क्या आपको गलती नहीं करने के लिए टेंशन लेना चाहिए? नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं, सर। बिल्कुल नहीं। अगर आप लिए तो आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप नहीं उतने ज्यादा एक्विजिशन कर पाएंगे। तो आप अपने आप को पूर्वा, मैंने आपको कई बार कहा है रिलैक्स करने के लिए इस मामले में। आप समझ में आया कि ये सब चीजें यस सर, आई थियोरेटिकली साबित करी हुई हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता रहता किसी स्टूडेंट को, यस भाई मैं क्या गौर कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, क्या गौर कर रहा हूँ। मैंने रेनू को कहा, रेनू खाली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, राइट रेनू? तुम बेहतर हो जितना तुम अपने आप को समझती हो उससे। तो मैं हर एक स्टूडेंट को गौर कर रहा हूं और उसको फीडबैक दे रहा हूं। किस बेसिस पे? इन सब चीजों के नॉलेज के बेसिस पे कि आपके लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन सी चीजें बाधा बनेंगी और कौन सी चीजें आपकी मदद करेंगी। तो क्या आज के बाद आप कभी किसी से बात करेंगे इस बारे में कि लैंग्वेज कैसे सीखा जाएगा, स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखना है, या आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल चुका है एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर के साथ फ्लुएंसी का? आप वहां पहुंचेंगे चाहे जितना दिन लगे आपको। बताओ। यस यस सर। Yes, सर, sir. डेफिनेटली वी विल डू। हमें करना क्या है दोस्तों? Listen to more, listen. चुप्पी होकर ध्यान Comprehensible से पढ़ाई input, करना। सुनना है। comprehensible input, comprehensible input। और इनपुट के समय हमारे फिल्टर्स अप नहीं होने चाहिए, डाउन होने चाहिए। कौन से फिल्टर्स? यस सर, स्ट्रेस इनसिक्योरिटी, नहीं। स्ट्रेस नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है? पैशन, पैशन, वो क्या था वर्ड वहां पे लिखा हुआ? अनमोटिवेटेड। अगर आप अनमोटिवेटेड रहोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपको लगना चाहिए कि मेरे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? जब आप ऐसे फील करोगे, obviously you will be more motivated to take your input to LAD, language acquisition device। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी थी, सुन के समझ जाना is not enough for acquisition, इन्वॉल्व होना। आप लोगों को कई बार मैंने कहा कि आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं मैं। एक बात नहीं पढ़ी मैंने वहां पर जो बहुत जरूरी है कि मैं पढ़ के बताऊं, ताकि मेरे बोलने में और वहां लिखे रहने में फर्क है, थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी, मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ आप लोग के साथ। आप चाहे तो पढ़ना और मुझसे बताना भी। यहाँ पे एक बात लिखी है कि जब आप सुनते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, तो आप भूल जाते हैं कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्या करते हैं आप? हाँ, द फिल्टर इज लोएस्ट। फिल्टर सबसे नीचे होता है, यानी कि एकदम टेंशन फ्री आप हो सकते हैं। when the acquirer is so involved in the message that he or she temporarily forgets they are hearing or reading another language। जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं किसी टॉपिक पे, जैसे मैंने एक कैरेक्टर निकाला यहाँ पे, व्हाइट हाउस की कहानी थी, तो बात करते समय आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, और आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है व्हाइट हाउस को जानने में, उसके बारे में। आप अगर पूरे इन्वॉल्व हैं
तो आपकी जो फिल्टर्स है सबसे लोएस्ट होते हैं, इसका मतलब एक्विजिशन सबसे ज्यादा हाई होगा। Yes. और जैसे ही फिल्टर अप हो जाएगा एक्विजिशन लो हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आप लोग को एक लाइन हमेशा कहा है, प्लीज बी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। आपको लगना चाहिए यही मेरे लाइफ में अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हो रहा है और बहुत मजेदार चीज है। मैं अपनी तरफ से उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जितना पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि इतने तरह तरह के टॉपिक्स, अभी हम लोग यूनिट 4 में हैं और कुछ समय में यूनिट 5 में जाने वाले कल परसों, ओके। तो आई रियली डोंट नो कि मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको थीम्स दे सकता हूँ। थीम्स इंपॉर्टेंट है, मैं थीम्स पकड़ता हूँ, थीम लेके आऊंगा, एक कॉन्वर्सेशन होगा एक कजन दो कजन्स का, तो आप उसमें घुसेंगे, आप इमेजिन करेंगे जब आप छोटे थे तो कैसे बातें करते थे कजन से, ये लोग क्या कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपका फोकस होगा किस बात पे, वो जो बातचीत हो रही है उस पे, और इससे एक्विजिशन सबसे हाई होगा। मुझे एक बात पूछना है कि जितनी देर मैंने आपसे बात की ये सारी, क्या हम लोगों ने कोई एक्विजिशन किया है लैंग्वेज में? तो जवाब है 0। हम लोगों ने कोई एक्विजिशन नहीं किया, क्योंकि मैंने सारी बातचीत किस भाषा में की? हिंदी में। हिंदी में। तो कॉन्शियस लर्निंग के लिए तो हिंदी भाषा टीचर का यूज करना नॉर्मल है, लेकिन एक्विजिशन कराना है स्टूडेंट्स को तो टीचर का कौन सी भाषा में बात करना जरूरी है? टारगेट English. लैंग्वेज, टारगेट Target लैंग्वेज जो आप सीखना चाह रहे हो, राइट। अगर हम उस भाषा में नहीं बोलेंगे तो जाहिर सी बात है इनपुट ही नहीं आ रहा है, इनपुट ही नहीं आ तो हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, एक्विजिशन क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो क्या हम लोग कल भी हिंदी में बात करेंगे? No. नो। Only मैं English. बोलता हूँ इंग्लिश में, आप आराम से सुनो, समझने की कोशिश करोगे और हाँ रिलैक्स रहोगे तो एक्विजिशन ज्यादा बेहतर होगा। मोटिवेटेड रहोगे तो एक्विजिशन ज्यादा बेहतर होगा। और हर एक किसी का अपने लाइफ का अलग फंडा है। मेरे सारे बोलने की वजह से मोटिवेशन नहीं आ जाएगा सब में, ये बात मैं अभी भी जानता हूँ अच्छे से। मुझे काशिफ को मोटिवेट नहीं करने की जरूरत है क्योंकि उसका प्रमोशन डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ मौके पे इंसान थोड़े से लाइट इजी ले लेते हैं, खास करके ये जानने पे कि ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैनेज कर लेंगे। अगर आपको पता चले कि आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा तो आप आज को बेहतर यूज करना चाहेंगे, लेकिन आपको लगेगा आज नहीं कल कर लेंगे जो करना है, तो कोई टेंशन नहीं, राइट। तो प्लीज अपने इस चीज को इंटेंसिटी को बनाए रखो कि यू हैव लिमिटेड टाइम विद मी, ओके। यू डोंट हैव योर होल लाइफ विद मी, दैट्स द पॉइंट। You have a limited amount of time with me, so make good use of the time, okay everybody? Fine. I hope you guys will watch the recording and we will continue tomorrow. I hope this class was useful and you will never enter a discussion with anybody about how to learn a language. Input, comprehensible input. Everything else will work out on its own. Bye bye everybody, take care. Bye, sir. Bye, sir. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.